Good morning again. Remaining student will join the class quick, fast. Okay, let us start the lecture. So I will share the screen. Okay, last class we will be study about the sequential circuit where the basic element or basic component is the flip-flop. So today we will be study about the next part of the flip-flop where we have to study about the different types of flip-flop, uses of flip-flop, difference between the combinational and sequential circuit. And the first one is flip-flop, SR flip-flop is studied about by using the bistable multivibrator and designing by using the NOR gate. Today we will be study about the SR flip-flop using the NAND gate. Last class में we have to study about the designing of SR flip-flop by using the NOR gate, and today we will be study about the SR flip-flop by using the NAND gate. Okay, so firstly analyze the basic logic diagram of the SR flip-flop by using the NAND gate. Last class में अपन ने कैसे डिजाइन कराया था? By using the NOR gate. Today we will be discuss about the SR flip-flop and designing and the working of the SR flip-flop by using the NAND gate. है ना? NAND gate के रेस्पेक्टिव अपन इसका एनालिसिस करेंगे. अब नैंड गेट के ट्रुथ टेबल को अपन एनालिसिस करें तो उस केस में क्या आएगा? 0 0 का लें तो 1 आएगा, 0 1 का लें 1 आएगा, 1 0 का लें तो 1 आएगा, और 1 1 का लें तब 0 आएगा. मतलब स्पेशलिटी क्या है नैंड गेट में कि व्हेन द बोथ इनपुट आर हाई, दैट इज 1 1, देन आउटपुट विल बी लो 0. ओके, अब जैसे अपन यहाँ इसके ट्रुथ टेबल को एनालिसिस करें, when the set terminal is connected to 0, reset terminal is connected to 0, output is indeterminate. Okay, when set terminal is connected to 0, reset terminal is connected to 1, the output will be 0. Qn plus 1 next state will be the 0, and Qn plus 1 bar will be the 1. Okay, next level is the when set terminal is connected to 1, reset terminal is connected to 0, the Qn plus 1 output terminal is the 1, and the Qn plus 1 bar will be the 0. And when the set terminal is 1, reset terminal is 1, then output will be the no change condition. Okay, ऑब्जर्वेशन क्या है? अपन ने सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन अपन एसआर फ्लिप फ्लॉप में करते हैं कि वह सेट टर्मिनल हाई है तो आउटपुट हाई है ना? Qn plus 1 क्या हाई रहेगा. वह सेट टर्मिनल 0 है तो आउटपुट क्या है? 0 है. ठीक है, सिमिलर में अब इसका ऑब्जर्वेशन करें अपन. When the clock pulse is not applied, the table is known as the truth table. When the clock pulse is applied, table is known as the characteristic table. इसका मीनिंग क्या है कि जैसे अपन ने ये एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर रखा है विदाउट एनी क्लॉक पल्स, है ना? यहाँ कोई क्लॉक पल्स अपन नहीं दे रहे हैं. बाय द वे, अगर क्लॉक पल्स के रेस्पेक्टिव अपन एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करें, जैसे ये वाला बेसिक एलिमेंट हुआ, ये वाला एलिमेंट हुआ, बीच में अपन ने सेंटर में क्या कनेक्ट कर दी? क्लॉक पल्स. सो व्हेन द क्लॉक पल्स इज अप्लाइड to operate the SR flip flop, then the table is known as the characteristics table. पैरामीटर वही आएंगे जो इसमें आ रहे हैं, पर टेबल के नेम में डिफरेंस आ जाएगा. When clock pulse is not applied, that is known as the truth table. When the clock pulse is applied, that it is known as the characteristics table. जैसे ये वाली जो टेबल क्या है? characteristics table. ठीक है, इसको अपन आगे स्टडी करेंगे. पहले अपन इसका एनालिसिस कर लेते हैं. So when S equals to 0 and R equals to 0, that means S equals to 0, R equals to 0 means output should be 1. ठीक है, so when Q equals to 1, if consider Q equals to 1, तो 1 इधर गया. ठीक है, इसके रेस्पेक्टिव क्या है? R equals to 0 है तो आउटपुट क्या आएगा?
0 और 1 के केस, 0 और 1 के केस में क्या आएगा आउटपुट 1। ये 1 इधर गया, 1 इसके एस के साथ रिलेटेड है, एस के साथ रिलेशन क्या है 0 1, तो आउटपुट क्या हो गया फिर 0 1 का क्या हो 1, तो दोनों ही केस में आउटपुट क्या आ गए 1 1। इज इट क्लियर? इफ कंसीडर q इक्वल टू 1, तो 1 इधर गया, r पे 0 है, तो 0 और 1 का क्या बनेगा, 0 1 का क्या बनेगा 1, ये 1 हो गया। 1 इधर गया 1 और ये r पे s पे 0 है, तो ये 0 और 1 क्या बने 1। तो इस केस में क्या हो रहा है q भी 1 है और q बार भी 1 है, बोथ आर 1, दैट इज नोन एज द इनडिटरमिनेट कंडीशन। एक्चुअली क्या है कि q अगर 1 है तो q बार 0 होना चाहिए, q अगर 0 है तो q बार 1 होना चाहिए, पर इस केस में क्या हो रहा है दोनों क्या आ रहे हैं, इस केस में दोनों क्या आ रहे हैं ये 1 1 आ रहे हैं। अब बाय द वे जैसे अपन q को एज्यूम कर लें कि 0 है, तो ये 0 इधर गया, इस फर्स्ट टेबल के लिए बता रहा हूं मैं, s इक्वल टू 0 r इक्वल टू 0 के लिए। वैन जैसे कंसीडर q इक्वल टू 0, तो ये 0 इधर आया, r पे ऑलरेडी 0 था, तो 0 0 का क्या बना, ये 0 0 का क्या बन गया 1, ये यहाँ 1 आ गया, ये 1 इधर गया, 1 0 का क्या बन गया, ये 1 और 0 का, 1 और 0 का क्या बनेगा ये केस में 1, तो ये 1 आ गया, तो ये भी 1 है और ये वाला भी 1 है, तो दोनों 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, सो दैट इज नोन एज द इनडिटरमिनेट कंडीशन। क्लियर हुई बात? अब दूसरा केस लें जिसमें सेट टर्मिनल s पे तो क्या है 0 है, r पे क्या है 1 है, s पे 0 है और r पे 1 है। अब q को जैसे 1 लिया, तो 1 और 1 को अपन करेंगे, तो 1 और 1 के केस में क्या आएगा, ये 0 होगा, है ना, 0 ये ऊपर गया, 0 s पे क्या है 0, तो 0 0 का क्या हो गया 1 हो गया। इज इट क्लियर? फिर ये 1 और ये r पे क्या है 1 1 1 का क्या हो गया 0 0 0 का करा तो 1 आ गया, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्टिव अपन इसके ऑब्जर्वेशन को भी ऑब्टेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे अपन नॉर टेबल में समझ रहे थे लास्ट क्लास में, उसी सेम अप्रोच से अपन नैंड गेट की भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द क्लॉक, ये वाला क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप। कई बार क्या है ये अनक्लॉक्ड है, जिसमें अपन ने कोई क्लॉक जनरेट या कोई क्लॉक कनेक्टेड नहीं कर रखी है, उस केस में अपन ने एसआर फ्लिप फ्लॉप को एनालिसिस करा बाय यूजिंग नॉर गेट, बाय यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, अब यूनिवर्सल, अब ये और एक स्पेशलिटी देखने वाली चीज है कि अपन फ्लिप फ्लॉप को किससे एनालिसिस कर रहे हैं, बाय यूजिंग यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से, नॉर गेट है, नैंड गेट है। So basically the flip flop SR flip flop is defined, design and analysis by using the universal gate. फर्स्ट यूनिवर्सल गेट कौन सा लिया अपन, नॉर गेट। सेकंड यूनिवर्सल गेट कौन सा लिया, नैंड गेट। क्लियर है? अब क्लॉक को अपन इंट्रोड्यूस करते हैं। सो व्हेन द क्लॉक पल्स इज अप्लाई, तो क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो उस केस में सर्किट कैसे आएगा, ये बेसिक एलिमेंट हुआ है ना नैंड गेट के रेस्पेक्टिव। फिर अपन ने दूसरे नैंड गेट और एस और आर कनेक्टेड करे, बीच में सेंट्रलाइज अपन ने क्या कनेक्ट करा, क्लॉक पल्स। ठीक है, जनरली फ्लिप फ्लॉप इज डिजाइन्ड बाय यूजिंग द नॉर और नैंड गेट बिकॉज दीज आर द यूनिवर्सल गेट। इज इट क्लियर? ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट स्टेज ये इंपॉर्टेंट है, ट्रुथ टेबल को समझना है इसमें। When the set terminal is connected to 0, reset terminal is connected to 0, QT is the previous input, QT that means the previous input, and QT plus 1 is the next output, QT is the previous input, QT plus 1 is the next output. ठीक है, okay. So when the 0 0 0 previous input is 0, set terminal is 0, reset terminal is 0, then the next state will be the 0, no change condition, same as given in previous state, that is qt equals to 0. Clear है? मैं सेट टर्मिनल को भी 0 कर दिया, रीसेट टर्मिनल को भी अपन ने 0 कर दिया, कौन सी कंडीशन आती है, नो चेंज कंडीशन। नो चेंज कंडीशन में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट इस वाले टेबल में, इस वाली रो में क्या है 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या होगी 0 होगी। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है, QT 0 लिया अपन ने, प्रीवियस स्टेट 0 थी, सेट पे 0 करा, रीसेट पे 0 करा, आउटपुट क्या आया 0, क्योंकि सेट टर्मिनल को अपन ने किससे कनेक्ट कर रखा है, 0 से कनेक्ट करा, रीसेट को हाई कर रखा है, कौन सी स्टेट रहेगी, रीसेट करनी, रीसेट रहेगी, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी 0 आएगी। क्लियर हुआ? फिर अपन आगे चलते हैं, उसमें क्या करा, नेक्स्ट वाली स्टेट में अपन, नेक्स्ट वाली रो में सेट को फिर अपन ने हाई करा, रीसेट को 0 करा और प्रीवियस स्टेट अपन ने 0 ली, तो ये कौन सी कंडीशन आएगी, सेट स्टेट। सेट स्टेट में आउटपुट क्या रहेगा, हाई, क्योंकि सेट वाला हाई है इसलिए आउटपुट भी क्या होगा, हाई होगा।
और दैट इज इक्वल टू 1, नोन इज द सेट स्टेट। क्लियर हुई? दोनों पे 1 1 दे दिया, सेट पे भी 1 कर दिया, रीसेट पे भी 0 कर दिया। अब प्रीवियस स्टेट 0 है 1 है, डजंट मैटर, आउटपुट क्या आएगा? इनडिटरमिनेट। आउटपुट क्या आएगा? इनडिटरमिनेट कंडीशन। क्लियर हुई बात? ओके। नेक्स्ट अपन लें कि एस और आर दोनों पे 0 0 है, प्रीवियस स्टेट पे 1 था, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई? नो चेंज कंडीशन। दोनों पे 0 0 है तो कौन सी कंडीशन कहलाएगी? वो नो चेंज कंडीशन। नो चेंज कंडीशन की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कि आउटपुट, जो नेक्स्ट आउटपुट है वो क्या होगा? प्रीवियस इनपुट के बराबर। प्रीवियस इनपुट इसमें क्या था? 1 था, तो नेक्स्ट भी क्या होगा? 1 आ गया। नो चेंज कंडीशन। एस एम इज गिवन इन प्रीवियस स्टेट, और प्रीवियस स्टेट में क्यूटी की वैल्यू 1 थी, इसलिए क्यूटी प्लस 1 क्या हो गया? 1 ही आएगा। नो चेंज कंडीशन। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट केस में अपन क्या देख रहे हैं कि एस इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 1, तो कौन सी स्टेट है? रीसेट स्टेट है। रीसेट स्टेट में आउटपुट क्या रहेगा? 0, आउटपुट 0। नेक्स्ट वाली क्या है? सेट पे 1 है, रीसेट पे 0 है, कौन सी स्टेट है? सेट स्टेट है। सेट स्टेट में क्या आएगा? आउटपुट 1 हाई आएगा। ठीक है, दोनों को 1 1 कर दें, प्रीवियस 0 हो या 1 हो, उसे डजंट मैटर, आउटपुट क्या आना है? इनडिटरमिनेट। कौन सी कंडीशन है ये? रेस अराउंड कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है बेटा, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप की इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर ये बना के आनी है। इसमें ईच एंड एवरी रो कंडीशन अपने को क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, क्या कंक्लूजन में बता देता हूं कि जब दोनों पे 0 0 है, एस पे भी 0 है, आर पे भी 0 है, तब नो चेंज कंडीशन रहेगी। नो चेंज कंडीशन में आउटपुट स्टेट इज इक्वल टू प्रीवियस स्टेट। आउटपुट स्टेट QT प्लस 1 है, दैट इज इक्वल टू QT। QT अगर 0 है तो QT प्लस 1 भी क्या? 0 होगा। QT अगर 1 है तो QT प्लस 1 भी क्या होगा? 1 होगा। पहली स्टेट। दूसरी स्टेट क्या है? व्हेन एस पे 0 दे, आर पे अपन 1 दे, कौन सी स्टेट होगी? रीसेट। रीसेट में आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस केस में QT प्लस 1 क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, थर्ड स्टेट पे आते हैं। थर्ड स्टेट क्या है? व्हेन सेट को कनेक्ट करें 1 पे, रीसेट को कनेक्ट करें 0 पे, तो कौन सी स्टेट होगी? सेट स्टेट रहेगी। आउटपुट क्या आएगा? हाई आएगा। आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 1 के केस में क्या रहेगा? QT प्लस 1 क्या रहेगा? 1। क्लियर हुई? दोनों पे अपन 1 1 दे दें, सेट पे 1 दे दिया, रीसेट पे 1 दे दिया, तो उस केस में क्या आएगा? इनडिटरमिनेट कंडीशन, रेस अराउंड कंडीशन। अब प्रीवियस QT 0 हो 1 हो, उससे डजंट मैटर, आउटपुट क्या आएगा? 0 1 0 1 फ्लक्चुएट करता रहेगा, और उस केस में क्या रहेगा? ये इनडिटरमिनेट कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रुथ टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ट्रुथ टेबल का पूरी तरह से एक एक रो का अपने को क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, इस केस में अपन ने नैंड गेट से एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर रखा है। एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करते क्लॉक पल्स अपन ने इसमें जनरेट करी है। अब क्लॉक पल्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। व्हेन द क्लॉक पल्स इज 1, इसकी बेसिक स्टार्टिंग या बेसिक जो नीड क्या है कि व्हेन द क्लॉक पल्स इज हाई, देन आउटपुट, देन दिस सर्किट विल बी ऑपरेटिंग। जब तक अपन क्लॉक पल्स को हाई नहीं करेंगे, क्लॉक पल्स पे 1 नहीं देंगे, तब तक क्या होगा? या ये सर्किट वर्क ही नहीं करेगा। क्लॉक पल्स देने का मतलब क्या है? ये क्लॉक पल्स अपन ने दी, तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? क्लॉक पल्स अगर प्रेजेंट है, दैट इज रिलेटेड टू 1। ठीक है, जब तक अपन 1 नहीं देंगे तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। तो व्हेन द क्लॉक पल्स इज 1 टू एक्टिवेट द सर्किट, then reset R equals to 0, clock pulse is 1, output is 0, output is AND इस केस में 0। when R equals to 1, clock pulse is 1, output of AND gate 1, so any input of AND gate is 1, then it is transmitted as the present at input। ओके, सो इस केस में क्या है? क्लॉक पल्स शुड बी 1, क्लॉक पल्स को क्या करना है? 1 करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं इसमें स्टेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल विल बी चेंज। अब जैसे इस वाली जो अपन ने टेबल का एनालिसिस कर रखा है, इस वाली टेबल का जो अपन ने एक एक रो का एनालिसिस करा, बाय द वे अगर इसका एक्सप्रेशन अपने को फाइंड आउट करना हो, तो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए कौन सी अप्रोच अपन काम में लेते हैं? के मैप वाली, है ना, जिसमें अपन क्या एसओपी फॉर्म लेंगे। एसओपी फॉर्म मतलब जहां जहां 1 1 प्रेजेंट है, जहां 1 1 प्रेजेंट है, उस रो को अपन कंसीडर करेंगे और उसके रेस्पेक्टिव एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे।
तो इस केस में अगर अपन करेक्ट स्टेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल विल बी डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट स्टेट, तो उस केस में अपन देखें तो फर्स्ट ये 1 1 कहाँ प्रेजेंट है, इस वाली स्टेट पे, यहाँ QT की वैल्यू 0 है, S की वैल्यू 1 है और ये R की वैल्यू 0, तो 0 1 0, तो इसमें अपन ने 1 कहाँ रखा, 0 1 0 पर, 0 1 0, या QT की वैल्यू 0 है, ठीक है, S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 0, तो ये 1 आ गया, ये 1 है, ठीक है। नेक्स्ट 1 कहाँ पे है, फिर इसमें 1 0 0 पे, यहाँ QT की वैल्यू 1 है, 1 0 0, ये 1 0 0, ये वाला नेक्स्ट वाला, ये 1, S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 0, तो दिस इज सेकंड वन, ओके। अब तीसरा 1 कहाँ है, यहाँ पे है, ये वाले पे 1 1 0 पे, 1 1 0 पे कहाँ आएगा, ये 1 1 0, ये तीसरा 1 आ गया, थर्ड 1 है, ठीक है। 1 1 पुट ऑन कर दिए, 3 1 1 अपन ने पुट ऑन कर दिए के मैप के रेस्पेक्टिव। दूसरे और इसके रिमेनिंग क्या है, इनडिटरमिनेट कंडीशन कौन सी होती है, डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन किस पे है, 0 1 1 पे, 0 1 1 दैट मींस द ये 0 1 1, ये वाला 0 1 1 फर्स्ट डोंट केयर। दूसरा किस पे है डोंट केयर, 1 1 1 ट्रिपल 1 पे, तो ये ट्रिपल 1 1 1 1, ये वाला ट्रिपल 1। इज इट क्लियर। अब इसमें ग्रुपिंग करें, ग्रुपिंग किसके बनेंगे, 4 का ग्रुप बनाइए, 4 का ग्रुप बन गया, ठीक है। और एक ग्रुप बनेगा ये 1 और ये 1, ये 2 का ग्रुप बना, एक ये वाला लेफ्ट का बिलो वाला और ये राइट का बिलो वाला सेक्शन, तो ये 1 1 के 2 का ग्रुप बन गया। अब जैसे 4 के ग्रुप को अपन सॉल्व करें, 4 के ग्रुप में क्या है, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि एक पे QT = 0, एक पे QT = 1 है, तो कोई कॉमन नहीं है। वर्टिकली देखें तो ये वाली थर्ड और फोर्थ कॉलम है, थर्ड फोर्थ में कॉमन क्या है, S = 1 पे, थर्ड वाले के लिए भी S = 1 है, फोर्थ वाले के लिए भी S = 1 है, तो कॉमन क्या निकल के आया, S, ठीक है। अब 2 वाले इसको लें, 2 वाले केस में क्या आएगा, कॉर्नर के अपन जो 2 का ग्रुप बना रहे हैं उस केस में हॉरिजॉन्टल में तो क्या है, QT = 1 है, ठीक है। वर्टिकल में क्या है, वर्टिकल में फर्स्ट कॉलम है और फोर्थ कॉलम है ना। फर्स्ट कॉलम में क्या है, R की वैल्यू 0 और फोर्थ कॉलम में भी R की वैल्यू 0 कॉमन आ रही है, तो क्या बना, QT की वैल्यू 1 है, तो QT तो वैसे आया, R की वैल्यू 0 है तो उस पर R पे क्या आ गया, बार आ गया। सो फाइनल QT + 1, आउटपुट स्टेट क्या निकल के आई, S + R बार QT। Is it clear? That is the characteristics equation for SR flip-flop. That is known as the characteristics equation SR flip-flop. ये एग्जाम में पूछते हैं कि determine or obtain the characteristics equation for the SR flip-flop. तो ये इस तरह से अपन, जिसमें अपने को क्या है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद ये टेबल बनानी है, टेबल के बाद अपने को के मैप लगाना है, के मैप के बाद ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग करने के बाद ये फाइनल इक्वेशन डिटरमाइन। एक और दूसरी इक्वेशन इसमें क्या निकल के आती है कि SR = 0 फ्रॉम ट्रुथ टेबल एक्सेप्ट इनडिटरमिनेट कंडीशन फॉर ऑल द केसेस S × R = 0। मतलब इनडिटरमिनेट केस को छोड़ दें, बाकी सारे केसेस में क्या हो रहा है, S और R की वैल्यू क्या आ रही है, *0, S × R = 0, ठीक है। जैसे जैसे इस वाले इंडिटरमिनेट को छोड़ दे तो 0 × 0 0 आएगा, 0 × 1 करें 0 आएगा, 1 × 0 करें तो भी 0 आएगा। इसको छोड़ दिया इंडिटरमिनेट को, फिर अपन 0 × 0 करें 0 आएगा, 0 × 1 करें 0 आएगा, 1 × 0 करें तो भी 0 आएगा, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग ये है कि दूसरे भी अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये भी कहाँ से अपन डिफाइन कर रहे हैं, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या है कि फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ट्रूथ टेबल या कैरेक्टरिस्टिक टेबल है ना, एक्सेप्ट इनडिटरमिनेट कंडीशन फॉर ऑल द केसेस S × R = 0, so S × R = 0, ठीक है। तो ये SR फ्लिप फ्लॉप की टोटल स्टडी हुई, जिसमें अपन ने स्टडी करा डिजाइनिंग एंड द वर्किंग कंडीशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप बाय द NOR गेट। NOR गेट से अपन ने एनालिसिस करा, उसके बाद अपन ने इसका एनालिसिस करा NAND गेट के साथ, NAND गेट के बाद इसका एनालिसिस करा क्लॉक पल्स के रेस्पेक्टिव, और क्लॉक पल्स के रेस्पेक्टिव एनालिसिस करने के बाद अपन ने क्या डिटरमाइन करा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से अपन ने फाइनली क्या डिटरमाइन करा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आउटपुट स्टेट क्या है, QT + 1, ठीक है। इनपुट स्टेट क्या है, QT है, और S और R क्या है, इनपुट है, तो इससे जस्टिफाइड हो गया, ठीक है।
इसमें क्या है, QT प्रीवियस स्टेट थी, S और R इनपुट थे, और आउटपुट क्या निकल के आया, QT प्लस 1। इज इट क्लियर? तो इस फॉर्मेशन से भी अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, SR फ्लिप फ्लॉप इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली पूछा जाता है ये, तो इसको अपने को अच्छे से समझ लेना। आज अपन ये SR फ्लिप फ्लॉप को कंप्लीट करके वाइंड अप करेंगे। ठीक है, अभी और किसी कोई लेक्चर से रेस्पेक्टिव कोई भी डाउट हो, SR फ्लिप फ्लॉप से कोई भी डाउट हो, तो तुम मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हो। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है फ्लिप फ्लॉप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस सब्जेक्ट में, डिजिटल सिस्टम डिजाइन में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसको बस यही है कि इसको सिंपल, जैसे मैंने जो नोट्स बता रखे हैं तुम्हें, जो PDF बता रखी है, उस PDF में से पढ़ो, उसकी स्टडी करो, है ना। और सबसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट और रेफरेंस बुक वो मॉरिस मैनो है ना। मॉरिस मैनो का PDF मैंने तुम्हें बता ही दिया है, PDF डाउनलोड करो और उसमें से पढ़ो इसको। और जहाँ कहीं भी कोई भी इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझसे डिस्कशन करो, है ना। तो आज इस पे, इसको जो मैंने नोट्स बताए हुए हैं ना, इसकी PPT भी मैंने आपके गूगल क्लासरूम पे डाल दी है। इस लेक्चर को भी मैं कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अब आप इसको जो भी जो मैंने बताए हुए हैं नोट्स, इसको आप लो, और आज SR फ्लिप फ्लॉप को जो भी मैंने क्लास ली है, 2-3 क्लासें ली है ना, उस क्लासेस के रेस्पेक्टिव SR फ्लिप को केयरफुली स्टडी करो, और कोई डाउट्स आता, कोई कंफ्यूजन आता तो मुझसे डिस्कशन करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।